So in the previous class, we had done till question number 8. So let's continue from question number 9. Okay. Question number 9, you have, if ABCD is a parallelogram, if ABCD is a parallelogram, what do you have to prove? Let's draw a parallelogram ABCD. Point A is given as 3,6, B is given as -3,1, C नहीं दिया है, directly D is given as 6,2. They are asking you to find the coordinates of C. Find the coordinates of C. How can we do this sum? Find the midpoint of B and D. क्या करेंगे पहले देखो, ध्यान से देखना. आपको पता है कि ये पैरेललोग्राम है, सो द मिडपॉइंट ऑफ बोथ डायगोनल्स आर सेम. मतलब मैं क्या करूंगा, बी डी को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, और बी डी का मिड पॉइंट फाइंड करते हैं. ओके, वही ए सी का भी मिड पॉइंट होगा. ओके, तो समझो बी डी के मिड पॉइंट को नाम देते हैं बी. ओके, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट ओ. ओके, so O is the midpoint of BD. O is the midpoint of BD. So find the coordinates of O first. O के coordinates find करो. O को आप लोगे x, y, B को ले लो x1, y1 and D will be x2, y2. So x is x1 plus x2 upon 2, y is y1 plus y2 upon 2. तो क्या मिला आपको x and y? -3 plus 6 upon 2 and y is 1 plus 2 upon 2. What will be x? 3 upon 2. Y will be 3 upon 2. दोनों सेम ही मिल रहा है. ये मिला सबको? Yes, everybody. So you have found the coordinates of O. Therefore, O के coordinates क्या है? 3,2 upon 3,2. ठीक है, या इसको आप 1.5 1.5 भी लिख सकते हो. ओके, I'll erase this now. Now you see the figure again. आपको इसके कोऑर्डिनेट्स मिल गए 3/2 3/2. अब ये जो O है ये AC का मिड पॉइंट है. ठीक है, A के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है x1 y1, C के कोऑर्डिनेट्स आपको नहीं पता, उसे x2 y2, और ये A अगेन मिड पॉइंट होगा AC का भी. O जो है, दिस O विल बी द मिड पॉइंट ऑफ AC. ठीक है, तो फिर से O को आप ले लो xy एंड वापस मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करो यहाँ पे. इन दिस पार्ट अप्लाई मिड पॉइंट थ्योरम फॉर दिस लाइन. ऐसे लिखो, O is the midpoint of AC.
O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो फिर से फॉर्मूला आएगा आपका, अब x की जगह पे आप 3/2 लिखोगे, करेक्ट, बिकॉज यू नो द वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ O। तो x क्या है आपका 3/2, है कि नहीं? ये कोऑर्डिनेट्स 3/2 है ना आपके। x1 क्या है 3, x2 क्या है नहीं पता, अपॉन 2। y के भी 3/2, y1 is 6, y2 you don't know, अपॉन 2। अब ये 2 को तो कैंसिल कर दो, 3 minus 3 is x2, so x2 is 0। Again 2 cancel, 3 minus 6 is y2, so y2 is -3। Therefore final answer लिखो, the coordinates of C are 0, -3। Read the next question. Similar to this one, in fact you can do it on your own this question। क्या दिया है, सी P Q R S, ऐसे नाम देता हूं मैं। कोऑर्डिनेट P is given as -4, 1 and Q is given as 7, -3, correct। Its diagonals intersect at 2, 5। मतलब ये जो पैरेललोग्राम है, इसके जो डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं, ये पॉइंट ऑलरेडी आपको दे दिया है 2, 5। This point is already given and you have to find the coordinates of S and R. Khush, it is given in the question that is a parallelogram. So अब मुझे बताओ, how will you find R and S? पहले आप ये वाली लाइन लोगे, तो इसमें O is the midpoint of PR, correct। O is the midpoint of PR। तो आप इसको ले लो x1 y1, R को ले लो x2 y2, और ये O जो है ये बन जाएगा x, y, करेक्ट। और इससे आप R ढूंढो पहले, फाइंड R फर्स्ट। कोई कंफ्यूजन है? सिंपल है ना, आपको 2 पॉइंट्स दिया है, मिड पॉइंट ऑलरेडी दिया हुआ है और एक पॉइंट दिया है, दूसरा पॉइंट आप फाइंड कर रहे हो, ठीक है।
Similarly, do it for the other line, that is this line. इसमें भी O मिड पॉइंट है और Q को आप ले लोगे x1 y1 और S को ले लेना x2 y2. O will be the midpoint. क्या मिल रहा है R के कोऑर्डिनेट्स? 8,9. नाम गलत दिया है, PQRS होना चाहिए. zigzag नाम नहीं दे सकते. zigzag नहीं दे सकते. Yes. Find the coordinates of S also. S. S के कोऑर्डिनेट्स क्या है? Yes, what are the coordinates of S? -3, 13. Okay. Done. Question number 10 done. सबका हो गया? Question number 11. 11 is very easy. Read the question, you will be able to solve it on your own. See, question number 11 में उन्होंने बोला है AMB are collinear. Collinear means they lie on the same line. Okay, so this is collinear. Let's say A, M and B. These 3 points are collinear. और एक और बात बोली है AM equals MB. AM equals MB. अगर AM equals MB का मतलब क्या होता है? M is the midpoint. तो हो गया सम. तो फिर M is the midpoint. तो ये XY, इसको X1 Y1 और इसे X2 Y2.
देना ही पड़ेगा। बस जो वैल्यूज दी है उसे पुट करो और फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो, इजीली आंसर आ जाएगा। यूज द फॉर्मूला ऑफ मिड पॉइंट। Question number 12 is same as question number 11. Question number 12 रीड करो एक बार, सेम है क्वेश्चन नंबर 11 जैसा। सॉल्व इट, सॉल्व बोथ ऑन योर ओन। 11th वाला कंप्लीट करो पहले। 11th हुआ, आंसर आया। ए और बी की वैल्यू आएगी आपको, ए एंड बी, you will get the value of a and b, and 12th is same, so solve 12th one also. Come on fast, I'll give you 2 minutes. What is the answer for 11th one? 3 and 2. Yes. A is 3, B is 2. And for 12th one? X minus y is 7. Minus 2 and y is minus 2. माइनस एक नहीं है, ये एक ही है, तो कैसे हुआ? X is minus 2 or plus 2? Minus 2. Okay. And y is plus 7. Complete fast. Solve the question number 12. Then 13 करेंगे.
Question number 13. Question number 13 is same as question number 9. बस इसमें पैरेललोग्राम की जगह पे रोम्बस दिया है, बट करना सेम ही है. So again here they have said ABCD is a rhombus. ठीक है, और आपको तीन कोऑर्डिनेट्स दिए हैं. A is given as 3,8, B is given as 6,4 and C is given as 3,0 और D आपको फाइंड करना है. तो आप क्या करोगे, पहले AC का मिड पॉइंट फाइंड करोगे. ठीक है, और द मिड पॉइंट ऑफ BD विल बी सेम एज द मिड पॉइंट ऑफ AC. तो पहले इसको O ले लो, पहले AC का मिड पॉइंट O फाइंड करो एंड देन B और O यूज करके D फाइंड करो. ठीक है, जैसे हमने 9th सम में किया था. क्या करना है, ये जो लाइन है इसका मिड पॉइंट O है, तो पहले आप O फाइंड करो मिड पॉइंट के फॉर्मूला से. ठीक है, So solve for y. क्या मिला, O के कोऑर्डिनेट्स क्या मिले, 3 plus 3/2 and 8 plus 0/2. So you will get 6/2, that is 3, 8/2, that is 4. So 3,4. अब ये जो O है, it is the midpoint of BD also. Correct. O is the midpoint of BD. तो B को आप लो x1 y1, O को आप लोगे xy और D को लो x2 y2. और इस बार आपको x2 y2 फाइंड करना है. x के जगह पे आप क्या लोगे, यहाँ पे आपको ये कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी मिल गए ना, 3,4. तो x के जगह पे 3 आएगा. अगर x एक्सिस होता है तो y 0 होता है ना. Solve this and tell me the value of x2 y2.
13 का आंसर आ गया। एक सेकंड। आंसर चेक किया करो, खुद का आंसर हमेशा टेक्स्ट बुक के पीछे चेक किया करो, ठीक है। नाउ लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 14। 14 इज आल्सो इजी। क्या दिया है 14 में? AB is the diameter of a circle. So this is the diameter, let's say AB of a circle with C as the center. Center is C और C के coordinates आपको दिए हुए हैं 1, -2. The coordinates of A are -4, 10 और B के coordinates आपको नहीं पता। तो अगेन ये मिड पॉइंट है C, XY, ये X1, Y1 और ये X2, Y2. Apply the midpoint formula, you will get the answer. करो इसमें भी जल्दी। Done? Question number 15 करें। Those who are attending online, any doubt? C is not the radius Aksh here. AC is the radius and BC is the radius. AC और BC ये radius है। C is the midpoint. Yes, that is correct. Come to question number 15. See, important question. Star mark this question. It's important. क्या दिया इसमें? If you see point A, आपको पॉइंट A और B दिया हुआ है, ठीक है। M is the, they have given that M is the midpoint of AB. Correct, M is the midpoint of AB. और आपको बोला है कि A का कोऑर्डिनेट भी फाइंड करो और B का कोऑर्डिनेट भी फाइंड करो।
फाइंड ए एंड बी बोथ, तो कैसे कर सकते हैं? कुछ देखो यहाँ पे डायग्राम से इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये जो लाइन है आपको जो यहाँ पे दिख रही है, दिस लाइन इज एक्स एक्सिस, उन्होंने लिखा भी है वहां पे, देखो उन्होंने यहाँ पे एक्स लिखा है ना, they have written here x and here they have written y, so means ये जो पॉइंट है a, this is on x axis, और जो पॉइंट x एक्सिस के ऊपर होता है उसे हम क्या लेते हैं? x, 0, और जो पॉइंट y एक्सिस के ऊपर होता है उसे क्या लेते हैं? 0, y। ठीक है, अब आपको एक एक वैल्यूज मिल गई, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0। ठीक है, अब आप मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करो। ओके, और अब मिड पॉइंट अप्लाई करते वक्त एक चीज का ध्यान रखना, आप इसको x1 y1 लोगे, इसको x2 y2 लोगे, इसे x y मत लो, क्योंकि यहाँ पे x और y ऑलरेडी अननोन वेरिएबल्स है, तो इसे क्या करो, x डैश और y डैश ले लो। a भी ले सकते हो, बट x और y की आपको आदत है ना। अब इस तरह से वैल्यूज पुट करो, आपको अननोन वेरिएबल्स जो है, दो अननोन वेरिएबल्स, दिस x एंड दिस y, यू विल गेट द आंसर, फाइंड इट फास्ट। So sub question 2 is also same. Once you complete sub question 1, start sub question 2 also. बताऊंगा, पहले आप कोऑर्डिनेट्स ढूंढो फिर हम एरिया ढूंढेंगे। सब क्वेश्चन ए में x और y की वैल्यू क्या मिली? 6 और -4। आपने आंसर में ऐसे नहीं लिखना है 6, -4। आपको क्या पूछा है आंसर में, ध्यान से देखो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी, तो आपको लिखना है ए क्या था, x, 0, मतलब 6, 0, और b क्या है, 0, y, मतलब 0, -4। ये जब लिखोगे आप तब आपको मार्क्स मिलेंगे। खाली x और y ढूंढ लोगे तो 1 मार्क गया आपका। दिस इज योर फाइनल आंसर, राइट इट लाइक दिस, 1 मार्क गया, दो या 3 मार्क का ही सम होगा। सब क्वेश्चन 2 इज आल्सो सेम, उसमें c और d है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ c एंड d। सब क्वेश्चन 2 इज आल्सो सेम, फाइंड करो।
क्या आंसर मिला सेकंड पार्ट का? जीरो कॉमा, तो डिड यू गेट द वैल्यूज ऑफ कोऑर्डिनेट सी एंड डी एज -8,0 एंड 0,10 मिला? तो अभी हमें एक और चीज पूछिए, दैट इज द एरिया। आपको क्या पूछा है? एरिया ऑफ ट्राइंगल सीओडी। एरिया ऑफ ट्राइंगल सीओडी मतलब ये देखो, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है यहाँ पे, इसका एरिया पूछा है। एरिया कैसे मिलता है? हाफ बेस इंटू हाइट से। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो हाफ बेस इंटू हाइट। अब ये जो सी कोऑर्डिनेट है दिस इज -8,0 और ये जो डी कोऑर्डिनेट है इट इज 0,10। ओके, ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में दिस इज द बेस ऑफ द ट्राइंगल, ये होगा बेस। ओके, दिस इज द बेस ऑफ द ट्राइंगल एंड दिस इज द हाइट ऑफ द ट्राइंगल। अब बेस कैसे मिलेगा? ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ये -8 है और ये 0 है, सो 0 से लेके 8 मींस दिस इज 8 यूनिट्स। नेगेटिव साइड में है बट फिर भी 8 यूनिट्स लेते हैं उसे। ठीक है, और हाइट कितना होगा? ये वैल्यू y एक्सिस पे 10 है, सो हाइट विल बी 10 यूनिट्स। ओके, तो हाफ बेस इंटू हाइट होगा एरिया। एरिया विल बी हाफ बेस इंटू हाइट, सो हाफ इंटू 8 into 10, that is 40 square units. यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स होता है मतलब वो ग्राफ ही होता है। So your answer is 40 square units. Next, question number 16. Question number 16 is same as question number 16 is same as question number 9 and 13. 9, 13 में हमने क्या किया था? पहले मिड पॉइंट फाइंड करते हैं और मिड पॉइंट से दूसरा कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। वही चीज आपको करनी है यहाँ पे। 9 में पैरेललोग्राम था, 13 में रोम्बस था, अब यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है। सबके लिए मेथड सेम ही रहता है। ABCD नहीं, PQRS दिया है ना। PQRS आपको S नहीं दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे? पहले फर्स्ट यू विल फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ PR। इसको O नाम दे दो। O इज द मिड पॉइंट ऑफ PR। पहले आप O फाइंड करो XY लेके। पहले O के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो
and then O is the midpoint of QS also. फिर आपको उससे इसको x1 y1 लेना है और इसे x2 y2. Okay, so we have completed this chapter. ठीक है.